Hi everyone, this is Jenish Kota here and welcome to our video of French. So students, continuing the series of French grammar practice, in today's video we are going to solve mettez les verbes donner au temps ou au mode qui convenient, which means conjugate in the tense which is convenient. So students, in your board exam, they will ask you questions, they will ask you a lot of questions, but they will not indicate the tense. So you have to read the question, you have to translate the sentence into English, and then you have to decide in which tense it should get conjugated. Okay, so students, let's before starting with the video, I hope you guys have subscribed to our channel and like the video, and by the end drop a comment in the comment section and let me know exactly how did you find the video. Okay, so let's start with the video, students, and you can see some questions on the screen. Okay, yes, so it says put the verbs in the tense or mode convenient. Okay, so first one, in 10 minutes. Can you see over here, in 10 minutes? So now before starting with solving the exercise, students, I would assume that you guys already know the rules of each and every tense. Okay, let me just tell you one more thing, students, that this particular exercise does not have too many tenses. It is only restricted with very few tenses. So by the end of the video, you will get to know exactly what are the tenses that we're dealing with. Okay, so in first sentence, if you read dans 10 minuit, in 10 minutes. So if it is 10 in 10 minutes, so students, ये फ्यूचर में होने वाला है, एकदम फटाफट फ्यूचर में होने वाला है, फटाफट फ्यूचर में, बस 10 मिनट में. ओके, सो दिस इज फ्यूचर प्रॉश. सो नू ऑलरेडी दिया हुआ है, allons, and full verb, nous allons aller. We are going to go to the seaside. In 10 minutes, we are going to go to the seaside. Okay, so थोड़ा अजीब लग रहा है, बट चलेगा स्टूडेंट. सब्जेक्ट है, आलेर है, और कॉन्जुगेशन ऑफ और इन्फिनेटिव वर्ब है. ओके, नेक्स्ट, लेस enfants, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर लेसन्स. कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है तो प्रेजेंट टेंस ही करेंगे स्टूडेंट्स. द चिल्ड्रन, यहाँ पे द चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है तो मैं इसको इल्स फॉर्म कंसिडर करूंगा. एंड सेंटेंस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, देन वी वुड अज्यूम इट टू बी प्रेजेंट टेंस. थर्ड वन, if you see over here, they have written here. Here means yesterday. So yesterday तो पासे कंपोज है. So subject pronoun, conjugation verb avoir. avoir के साथ क्यों आएगा बच्चे लोग? क्योंकि voir verb avoir के साथ conjugate होता है, and past participle of the verb voir is view. Fine. Fourth one, les oiseaux vol. vol मतलब the birds fly. Il y a une demi-heure मतलब half an hour ago. तो हाफ एन आवर अगो स्टूडेंट्स, ये पासे रेसो होगा, पासे रेसो. तो हम क्या लिखेंगे? ले वाजो, OISEAUX, वाजो. फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा? कॉन्जुगेशन वर्ब वनीर आएगा, पासे रेसो करना है, द, और फिर वोलेर, VOLER. द बर्ड्स जस्ट फ्लू हाफ एन आवर अगो. द बर्ड्स जस्ट फ्लू हाफ एन आवर अगो. सो सब्जेक्ट है, वनीर है, DE इन्फिनेटिव है. ओके, fifth one, the cat, le chat dort dans cette chaise. The cat is sleeping in this chair. Again, कुछ भी मेंशन नहीं किया है. Yesterday, tomorrow, in 10 minutes, कुछ भी मेंशन नहीं किया. So present tense, DORT, dort. The cat है ना, the cat है स्टूडेंट्स, तो ill form consider करेंगे. So the cat is sleeping in this chair. Sixth one, again, notre ami, our friend. Again, ill form students because present tense दिया है, कुछ भी नहीं मेंशन है. तो ill VN, VIENT, notre ami VN au cinéma. Our friend comes to the cinema. Seventh one, I like to visit my auntie. तो शुद्ध विजिटर वर्ब प्रेजेंट टेंस ही है बिकॉज कुछ मेंशन नहीं किया, और फुल वर्ब आएगा. बिकॉज देखो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इफ यू सी ओवर हियर, ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है जो कॉन्जुगेट हो चुका है. तो सेकंड वर्ब स्टूडेंट्स क्या आएगा? इन्फिनेटिव आएगा, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना. आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके चेक कर लो. आई लाइक टू विजिट, तो टू विजिट है तो फुल वर्ब आएगा स्टूडेंट्स. आई लाइक टू विजिट माई आंट. Next after that, it says l'année dernière, last year. तो लास्ट ईयर पासे कंपोज होगा स्टूडेंट्स. नू दिया हुआ है तो nous avons voulu, we wanted to visit China. Ninth one, so when a sentence starts with a negation, with a verb, when a sentence starts with a verb, so students ये command है, imperative है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेनेवर द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ वर्ब. इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब हमें दिया नहीं है, शर्ट यू इलेल नुवु इलेल, हमें हमारा दिमाग लगाना है बच्चे लोग. सो इंपेरेटिव है, कमांड है. कमांड कैन ओनली बी गिवन इन टू, नु एंड वू फॉर्म. तो इधर काम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आगे एस लिखा हुआ है तो प्लूरल होगा. तो स्वये लिख रहा हूं, स्वये काम, बी काम, दैट्स इट.
बी काम, मैंने कमांड दिया बी काम, एंड एथरा इज एन एक्सेप्शन इन इम्पेरेटिव। तो अगर आपको ये सारे, मैंने पर्टिकुलरली एक एक टेंस के ऊपर ऑलरेडी एक एक वीडियो बना दिया स्टूडेंट्स। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट रिविजन। सो इफ यू फील लाइक कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, so you can go and first watch that particular video. Okay, 10th one, who is going out with me, or he who is coming out with me, who is coming out, to present tense again students SORT, कुछ भी मेंशन नहीं किया है और कुछ नहीं पता तो हम उसको इल फॉर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो who is coming out with me। 11th one, again the children smell the flowers, the child है ना, present tense singular है, SENT, the child smell the flowers। Helen again prefers है, तो prefers है ना, PREFERE, तो प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, तो इट्स ER एंडिंग वर्ब, और इसमें थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ई पे अक्यूट है, सेकंड ई पे ग्राव है। हेलेन प्रेफर्स दिस ब्लू ड्रेस। 13th one, now again students देखो 9th and 13th are similar, both the sentence starts with a verb, so again this is imperative, have patience my children। so मैं कमांड दे रहा हूँ अपने बच्चों को, प्लूरल फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ओके। so आइए de la patience mais of verb, have patience, and again our is an exception, so you should know the conjugation accordingly। 14th one, la dimanche dernier, so this 14th one, if you just read the question, dimanche dernier means last Sunday, so last Sunday I read a novel, तो last Sunday मतलब passé compose है, तो j'ai lu, I read a good novel, I read a good novel। 15th one, in 5 minutes, in 5 minutes, so you see over here, in 5 minutes, मतलब देखो फर्स्ट नंबर और 15th नंबर सिमिलर है, अगेन दोनों फ्यूचर क्रॉस होगा। वोत्र आमी स्टूडेंट्स, वोत्र आमी मतलब इल फॉर्म, सिंगुलर है तो इल फॉर्म कंसीडर करेंगे। वोत्र आमी वा आरिवे इज गोइंग टू अराइव, इन 5 minutes योर फ्रेंड इज गोइंग टू अराइव। ग्रेट, चलो आई अज्यूम बच्चे लोग अभी आप लोग को ये टॉपिक समझ गया होगा। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव फ्यू मोर सेंटेंसेस इन दिस पर्टिकुलर photo itself। I'm going to rub this part first and hope you are solving it with me। I'm going to rub this part and let's move forward। नीचे जाएंगे, टोटल 15 सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें 15 के आगे थोड़ा सा बढ़ना है। Yeah, so let's start 16th one। if you read 16th one, it says Ilya sank minuit 5 minutes ago। okay, तो स्टूडेंट्स 5 minutes ago मतलब पास से, सो अभी एकदम रिसेंट में, अभी जस्ट ही हुआ है, और ये आवियो, तो फिर स्टूडेंट्स इल फॉर्म कंसिडर करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, लावियो, सब्जेक्ट है, कॉन्जुगेशन वर्ब वनीर है, प्लस डीई है, और इन्फिनिटिव है, सब्जेक्ट प्लस वनीर प्लस डी प्लस इन्फिनिटिव। ओके, सो इट सेज द प्लेन हैज जस्ट left, the plane has just left। 17 one, no palpa ato professor, तो स्टूडेंट्स ये देखो कमांड दिया हुआ है, do not talk to your professor। ओके, और कमांड ट्यू फॉर्म में देंगे, कमांड कैन बी गिवन इन टू नुवू फॉर्म, पर यहाँ पे ऑलरेडी तो लिखा है तो हम ट्यू फॉर्म में कमांड देंगे, no palpa। एंड याद रखना है ER एंडिंग वर्ब में हमने कमांड ट्यू फॉर्म में दिया, पर S कैंसिल हो जाएगा, द राइट स्पेलिंग इज PARLE। अगेन 18th one, अगेन स्टूडेंट्स इट स्टार्ट्स 17 18 दोनों इंपेरेटिव है, दोनों कमांड है। ओके, 17 में नेगेटिव कमांड था, 18 में अफर्मेटिव है, गो टू द पार्क विद योर फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स खाली VA आंसर आएगा, S निकाल देंगे। 17 और 18 दोनों मैंने ट्यू फॉर्म कॉन्जुगेट किया है, बट दोनों में S नहीं आएगा। ओके, दैट्स द रूल ऑफ इंपेरेटिव, दैट व्हाइल यू गिव कमांड इन ट्यू फॉर्म यू रिमूव S इन ER एंडिंग वर्ब्स। सो गो टू द पार्क विद योर फ्रेंड। 19th one, avons here before yesterday, nous avons, so before yesterday important is students यहाँ पे avons here, nous avons appris, क्या है apprendre, nous avons apprendre का क्या हो जाएगा, appris हो जाएगा, exception है, we learned lesson 2, nous avons appris, we learned lesson 2। 20th one, my brother buys his clothes at this shop, तो again कुछ mention नहीं किया before after, तो फिर present tense करेंगे। मोफ्रेर, मोफ्रेर स्टूडेंट मतलब इल फॉर्म कंसिडर करना है, सो कॉन्जुगेशन क्या आएगा, ACHETE, एंड फर्स्ट ई पे ग्राव आएगा, फर्स्ट ई पे ग्राव, इट्स एन एक्सेप्ट, सेमी रेगुलर वर्ब है। फाइन, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखोगे ये जो वर्ब है, प्रेफरेर एक वर्ब था, आश्तेर एक वर्ब है, ये सारे सेमी रेगुलर वर्ब्स है, और सेमी रेगुलर वर्ब्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दैट हियर, हियर मींस यस्टरडे, सो यस्टरडे माय मदर, तो पास से कंपोज आएगा स्टूडेंट्स, माय मदर मतलब एल फॉर्म समझना है उसको, एल फॉर्म, तो मामेर आ FAID, सब्जेक्ट प्लस आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
Okay, so my mother made a chocolate cake. My mother made a chocolate cake. 22. अगेन स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हियर मींस यस्टरडे, तो पासे कंपोजे करना है, बट दिस टाइम पासे कंपोजे बट इन द इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आवे वो सब्जेक्ट भी आना चाहिए, आवर आना चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल, और इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स हमें उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, आवे व्यू ब्यू, सो डिड यू ड्रिंक बियर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। 23 ओके, सो 23 दो मीन वी इन 2 minutes, सो फ्यूचर प्रोसेस स्टूडेंट्स फ्यूचर में है 2 मिनट के बाद, सो फ्यूचर प्रोसेस सब्जेक्ट आव्यो है कॉन्जुगेशन ऑफ आर एल प्लस इन्फिनेटिव पार्थिर लाव्यो, बाकी आपको सब सेंटेंस लिखते हैं, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं यहाँ पर, द प्लेन इज गोइंग टू लीव इन 2 minutes। 24 प्रेजेंट टेंस, वी ट्रैवल टू इटली विद आवर फैमिली, तो VOYAGEONS, अगेन इट्स अ सेमी रेगुलर वर्ब, voyager इट्स अ GER एंडिंग वर्ब, न्यू फॉर्म में GEONS होगा, वी ट्रैवल टू इटली विद आवर फैमिली। 25 द स्टूडेंट्स इट्स IR एंडिंग वर्ब, तो क्या आएगा FINISSENT, IR एंडिंग वर्ब है ना, ISISIT तो IR ड्रॉप करके मैंने ISSENT डाला है। द स्टूडेंट्स फिनिश दिया वर्क। 26 प्रेजेंट टेंस, नहीं प्रेजेंट टेंस नहीं है, यहाँ पे हियर दिया हुआ है, हियर दिया मतलब यस्टरडे हो गया, अगेन पासे कंपोजे, सो यहाँ पे आएगा लेतुदियों, इल फॉर्म हो गया आ एक्री, द स्टूडेंट, तो एतुदियो में ई अक्यूट है और एक्रीड में भी ई अक्यूट है, द स्टूडेंट रोड द लेटर, ओके द स्टूडेंट रोड द लेटर। लास्ट 4 सेंटेंस हेनरी कॉमा, स्टूडेंट्स हेनरी के बाद कॉमा दिया है, तो कमांड है कम हियर विद योर बुक, तो VINS, तो कमांड कैन बी गिवन टू नुवु फॉर्म, मेरे को यहाँ पे ट्यू फॉर्म की यूज करना है क्योंकि यहाँ पे तो दिया, तो मैं ट्यू फॉर्म यूज करूंगा VINS। तो बच्चे लोग आप बोलोगे सर ट्यू फॉर्म में एस कैंसिल होना चाहिए, नहीं यहाँ पे एस कैंसिल नहीं होगा, क्यू वो सिर्फ ER एंडिंग वर्ब्स में कैंसिल होता है, 27 में एस कैंसिल नहीं होगा। 28 उवरीर वर्ब दिया है स्टूडेंट्स, उवरीर OUVRE, यहाँ पे एस कैंसिल होगा, क्यों होगा, बिकॉज उवरीर एक गद्दार वर्ब है, ओके उव्र उव्र तो लीव्र ओपन योर बुक, गद्दार वर्ब है, दैट मींस उवरीर, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स उवरीर एक IR एंडिंग वर्ब है, पर इसका कॉन्जुगेशन पूरा का पूरा ER एंडिंग वर्ब जैसे होता है, इसलिए मैं उसको गद्दार बोलता हूँ, वो IR को बिलोंग करता है पर उसके कॉन्जुगेशन ER जैसे है। 29 प्रेजेंट टेंस, द चिल्ड्रन वांट टू प्ले, तो VEULENT इल्स फॉर्म आएगा, द चिल्ड्रन वांट टू प्ले प्रेजेंट टेंस। एंड लास्ट एक स्टूडेंट्स लास्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लाने देर नियर मतलब लास्ट ईयर, तो पासे कंपोजे है, ओके तो ये एत्र मुरीर एत्र के साथ जाता है स्टूडेंट्स, तो मातौंत कॉन्जुगेशन ऑफ एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और अगर एत्र है स्टूडेंट्स तो क्या होगा एक्स्ट्रा ई लगेगा, ओके अग्रीमेंट्स लगेंगे, माई आंट डाइड लास्ट ईयर, ग्रेट परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट सी ऑल द आंसर्स, मैंने सारे आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं, ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक, टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था कि आपको कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ जाना चाहिए, आपको खुद से डिसाइड करना है कि कॉन्जुगेशन कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, एंड यप थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय टाटा टेक केयर।